أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. یہ ہم دعا گو ہیں آپ سب تمام کے لیے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش و خرم ہوں, صحت و عافیت کے ساتھ ہوں. اور ہم دعا گو ہیں اس بات کے لیے بھی کہ وہ اس مشکل وقت کو جلد از جلد رخصت کرے اور ہم تمام کے ملنے کے مواقع پیدا ہوں. شروع کرتے ہیں آج کا نیا ویڈیو. انوائرمنٹل پولیوشن چیپٹر نمبر 2 کا ایک اور سب ٹاپک ہے نوائز پولیوشن یعنی صوتی آلودگی. صوتی آلودگی یا آواز کی آلودگی کیا ہے, کس طرح ہوتی ہے اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے, یہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو. نوائز پولیوشن سب سے پہلے دیکھیں گے ہم اس کی تعریف کیا ہے. The word noise is derived from a Latin word nausea, which means unwanted or unpleasant sound that causes discomfort. صوتی آلودگی لفظ noise لاطینی زبان کے لفظ nausea سے اخذ کیا گیا ہے, جس کے معنی ہیں انچاہی یا ناخوشگوار آواز جس سے بے اطمینانی پیدا ہو. یعنی آواز کی سطح کا اس لیول پر بڑھ جانا, آواز کا اس قدر بڑھ جانا کہ وہ ناخوشگوار معلوم ہو, یہ آواز کی آلودگی کہلاتا ہے. ویری سمپل. نوائز اسٹینڈرڈز کیا ہیں؟ نوائز اسٹینڈرڈ یعنی آواز کے کا پیمانہ. آواز کے پیمانے کے لیے ہر ملک نے اپنے اپنے نوائز اسٹینڈرڈ طے کیے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے اور ان کے معیار کی بنا پر. بھارت میں بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈز نے جو معیار طے کیا ہے, بھارت کا جو آواز کا معیار ہے 45 to 60 ڈیسیبلز ہے. دیٹ از پرمیٹڈ. ڈیسیبل یہ آواز کو ناپنے کی اکائی ہے. یہ 45 سے 60 ڈیسیبلز کی ہمارے یہاں پرمیشن ہے. اور ہم کو نظر آ رہا ہے اس ٹیبل میں کہ انڈسٹریل ایریا میں 75 سے ڈے ٹائم از کنسیڈرڈ فرام 6 AM to 10 PM اور نائٹ ٹائم سٹارٹس وتھ 10 PM to 6 AM. یہ 75 ڈیسیبلز ہوتا ہے دن میں اور رات میں 70 ڈیسیبلز ہوتا ہے. پیمانہ ہے 60 سے 45 کا, 45 سے 60 کا سوری. اس کے بعد کمرشل ایریا میں 65 سے 45 ڈیسیبلز ہونے چاہیے. 65 ڈے ٹائم میں, 55 نائٹ میں. ریزیڈینشل ایریا جو رہائشی علاقہ ہے وہاں پر 45 رات کے وقت اور 55 ڈیسیبل دن کے وقت ہونی چاہیے آواز. سائلنس زون جو کہلاتا ہے خاموش علاقے, جس کے اندر ہاسپٹلز, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز وغیرہ کا شمار ہوتا ہے, وہاں پر دن میں 50 ڈیسیبل اور رات کے وقت 40 ڈیسیبل سے زیادہ آواز کی سطح نہیں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں 90 ڈیسیبلز تھریشولڈ لمٹ ویلیو ہے. 90 ڈیسیبلز اگر 9 آورز تک ہے تو وہ کنسیڈریبل ہے فار 9 آورز. اگر 95 ڈیسیبلز ہے تو 4 آورز کے لیے, 100 ڈیسیبلز ہے تو 2 آورز کے لیے, اور اگر 115 ڈیسیبلز ہیں تو وہ صرف 15 منٹس پر ڈے, اتنا ہمارے یہاں الاؤڈ ہے. اس کے اوپر جو ہوگا تو یعنی وی آر وائلیٹنگ دی رولز. یہ نوائز اسٹینڈرڈ ہیں. اس کے بعد کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ سینٹرل پولیوشن کنٹرول بورڈ جو CPCB ہے انڈیا کا, they have conducted a noise pollution survey in 8 major cities of India like Delhi, Chennai, Kolkata, Bangalore, ممبئی, حیدرآباد, کانپور, جے پور. اور وہاں پر انہوں نے کیا پایا, they found
that their noise pollution level is much higher than the prescribed limit. Similar situation is seen in almost every part of the world and is worsening day by day. यानी जो कुछ भी वैल्यूज दी गई हैं, जो कुछ भी लिमिट्स हमको दी गई हैं, उसके बहुत ज़्यादा बियॉन्ड थी वो सारी आवाज़ें जो जैसे अभी हमने देखा इंडस्ट्रियल एरिया में, कमर्शियल एरिया में ऐसा होना चाहिए, इतनी आवाज़ होनी चाहिए, उन सब हदों से मुतजाविज़ है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर तरफ ये हो रहा है और इसके अंदर और ज़्यादा दिन ब दिन इसकी सूरत हाल और ज़्यादा अबतर और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। आवाज़ की शिद्दत देखिए। सोर्स, द इंटेंसिटी ऑफ सम साउंड सोर्सेस इन डेसिबल स्केल्स। यहाँ पर एक टेबल और है जिसमें दिया गया है ब्रेथ, जब हम सांस लेते हैं उस वक्त हार्डली 10 डेसिबल्स की आवाज़ पैदा होती है। सॉफ्ट विस्पर अगर हो, हल्की सी जो नरम सी सरगोशी है, उसमें 20 से 30 डेसिबल्स की आवाज़ पैदा होती है। लाइब्रेरी भी हालांकि एक साइलेंट जोन ही होता है, वहाँ पर 30 से 35 डेसिबल्स की आवाज़ पैदा हो सकती है। लो वॉल्यूम रेडियो अगर लो वॉल्यूम में चलाया जा रहा है तब 35 से 40 डेसिबल्स। नॉर्मल कन्वर्सेशन जो होती है हमारी, हम लोग जो नॉर्मल बात करते हैं उसमें 35 से 60 डेसिबल्स की आवाज़ पैदा होती है। ऑफिस में जो काम काज होता है उस दौरान जो आवाज़ पैदा होती है वो 60 से 80 डेसिबल्स तक होती है, जबकि ट्रैफिक की आवाज़ 50 से 90 डेसिबल्स क्रॉस करती है। मोटरसाइकिल जब रन करती है, जब वो मोशन में होती है, तब उससे 115 से 120 डेसिबल्स का वॉल्यूम जनरेट होता है। जेट प्लेन्स जब टेक ऑफ करते हैं then they create 140 to 150 decibels intensity volume. उसके बाद लॉन्चिंग ऑफ स्पेस रॉकेट, स्पेस में जब रॉकेट दागा जाता है, छोड़ा जाता है, उस वक्त 160 से, क्योंकि बहुत बड़ी मिकदार में ईंधन जलता है, तो 160 से 180 डेसिबल्स का वॉल्यूम वहाँ पर क्रिएट होता है। यह आवाज़ की शिद्दत बता रहा है आपको। अब देखते हैं हम कि किन ज़राए से, किन वजूहात से, किन असबाब से सौती आलूदगी पैदा होती है। तो पहला तो सनती तरक्की। सनतें जब जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा उतना ज़्यादा हर किस्म की, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कई बार कहा है कि सनतें बहुत बड़ा सोर्स हैं आज हर किस्म की आलूदगी पैदा करने का। तो जितनी ज़्यादा सनती तरक्की होगी उतनी ज़्यादा आलूदगी पैदा होगी। सवारियाँ, जितनी भी सवारियाँ हैं, चाहे वो ट्रेन हो, मोटर बाइक हो, कार्स हो, एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर्स हो, ये सारी की सारी सवारियाँ आवाज़ पैदा करती हैं, बहुत ज़्यादा सौती आलूदगी पैदा करती हैं। गुंजान आबाद इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी हो, कम रकबे में ज़्यादा लोग जो रहते हैं, वो गुंजान आबाद इलाके, वहाँ पर भी सौती आलूदगी पैदा हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पड़ोसियों का चीखना चिल्लाना, बच्चों का के लड़ाई झगड़े, उस दौरान बहुत ज़्यादा सौती आलूदगी पैदा होती है। फिर घरेलू बिजली के आलात जैसे वॉशिंग मशीन हो गई या फिर मिक्सर ग्राइंडर हो गया, टेलीविज़न है, स्टीरियो इक्विपमेंट्स हैं, ये आवाज़ पैदा करते हैं, बिजली के जो आलात होते हैं। उसके बाद सनतों में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, सनतों में चूँकि बहुत बड़ी जॉइंट मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, उनसे भी सौती आलूदगी होती है। कंस्ट्रक्शनल साइट्स पर जहाँ पर मकानात वगैरह बनते हैं, जो तामीरी जगह होती हैं, वहाँ पर भी चूँकि बड़ी मशीनें इस्तेमाल होती हैं, मिक्सर होता है वहाँ पर वो, और ऊपर जो फ्लोर्स वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें बहुत सारा वॉल्यूम क्रिएट होता है। ये सारे के सारे सौती आलूदगी के असबाब हैं। फिर उसके बाद अब हमें देखना है सौती आलूदगी के असरात। सौती आलूदगी के असरात दो तरह के होते हैं, ये जिस्मानी भी हो सकते हैं और ये नफ्सियाती भी हो सकते हैं। जिस्मानी जो मसाइल हैं
उनको हम देखते हैं पहले। फिजिकल इफेक्ट्स क्या हो सकता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तेज़ आवाज़ सुनने से, हियरिंग में समात में कमज़ोरी आएगी और आहिस्ता आहिस्ता बहरेपन भी हो सकता है अगर लंबे अरसे तक तेज़ आवाज़ पैदा करने वाली जगहों पर रहें तो। नौशिया, चक्कर आती है, गिडीनेस, वोमिटिंग, हेडेक, ये सारे मसाइल जो हैं ये फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि ऐसे लोगों को जो कि लंबे अरसे तक मुसलसल तेज़ आवाज़ वाली जगहों पर रहते हैं उनको ये सारे प्रॉब्लम्स उनके अंदर ये हो सकते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके। नर्वसनेस, बहुत इंसान नर्वस होता है कोई चीज़ के लिए, बहुत फैसला नहीं ले पाते हैं और घबराहट होती है, एंजाइटी, बेचैनी होती है, हाइपर टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस, तनाव बहुत ज़्यादा आ जाता है लाइफ में। ये सारे भी प्रोलॉन्ग्ड इम्पैक्ट्स हैं जो कि मुसलसल तेज़ आवाज़ सुनने की वजह से हो सकते हैं। उसके बाद अब सवाल ये है कि हाउ वी कैन कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन, कैसे इस पर काबू पाएँ। तो इसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 1, ज़्यादा शोर पैदा करने वाले आलात का मुतबादिल इस्तेमाल किया जाए, यानी ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा शोर पैदा करती हैं उनके बजाय ऐसी टेक्निक पहले तो इन्वेंट होनी ज़रूरी है, उसके बाद वो अवेलेबल होनी ज़रूरी है, फिर वो अफोर्डेबल होनी ज़रूरी है ताकि ज़्यादा शोर पैदा करने वाले आलात का मुतबादिल इस्तेमाल हो सके। फिर उसके बाद सनतों से निकलने वाली जो आवाज़ होती है उसको साउंड प्रूफ दीवारों, दरवाज़ों और छतों के ज़रिए जज़्ब किया जा सकता है। सनतों में चूँकि बड़ी बड़ी हैवी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं जो बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करती हैं, तो उनको वहीं पर एब्जॉर्ब करने के लिए साउंड एब्जॉर्बेंट्स लगाए जाने चाहिए दीवारों पर और छतों पर, दरवाज़ों पर, ताकि वो आवाज़ जो है वो बाहर ना निकलने पाए और वहीं पर जज़्ब हो जाए। उसके बाद फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उन्हें ईयर प्लग का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो इस सौती आलूदगी के फिज़िकल और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट से महफूज रह सकें। फिर रिहायशी मकानात जो हैं वो शोर वाली जगहों पर तामीर करने से गुरेज करना चाहिए। रिहायशी मकानात कमर्शियल एरिया से अलग होने चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया से अलग होने चाहिए, या हम ये कह दें कि रिहायशी इलाकों में कमर्शियल जो एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं ज़्यादा, उनसे वो नहीं होना चाहिए ताकि सौती आलूदगी पर हम काबू रखें। तस्वीर में नज़र आने वाला जैसा रेजिडेंशियल एरिया पुरसुकून बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और वहाँ पर सनतें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हम चूँकि सनती शहर में रहते हैं, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अब तो खैर बहुत कम हो गया है, पावर लूम आपको सिर्फ शहर के किनारों की तरफ नज़र आएंगे, लेकिन पहले ये तो बहुत मामूल की बात थी कि ये नीचे लूम्स हुआ करते थे और ऊपर लोग रिहाइश इख्तियार करते थे। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ हज़ार्ड्स हो सकते हैं। अगला ये है इक़दाम कि हम अवामी जगहों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल में हमें एहतियात बरतना चाहिए। अवामी जगह जितनी भी हों, चाहे वो रेलवे स्टेशंस हों या फिर वो लोगों के इकट्ठा होने की जगह हो, पार्क हो सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स हो सकते हैं, मजहबी जगह हो सकती हैं, उन सब जगहों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल में एहतियात बरतना चाहिए। इसको लेकर अभी फ़िलहाल जो करंट सिनेरियो है यूपी वगैरह में, इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती से अमल किया जा रहा है, बैन लगाया जा रहा है। मस्जिदों में, मंदिरों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर सख्ती से पाबंदी लगाने की कोशिशें जारी हैं। फिर उसके बाद अगला जो इक़दाम ये है कि सौती आलूदगी पर काबू पाने के लिए जो कवानीन बनाए गए हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सख्त इक़दाम किए जाने चाहिए। सख्त इक़दाम, ये जो कवानीन बनाए गए हैं अंडर एयर एक्ट 1981 से बने हुए हैं ये कवानीन, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन इज़ कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन, तो उसके अंदर जो कुछ भी गाइडलाइंस दी गई हैं, जो जैसे हॉकिंग पर पाबंदी है, हमारे यहाँ तो हॉर्न देकर गाड़ियाँ चलाना फैशन है और उसे बहुत
فخر کی بات سمجھا جاتا ہے کہ ایک نئے نئے قسم کے ہارن لگائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے ترقی یافتہ ملکوں میں اگر کوئی کسی نے بلا وجہ ہارن دے دیا، یا جہاں پر جو ایریا ہے جس الگ کسی ایریے میں وہاں کی اگر رول کی خلاف ورزی کر دی، ہارن دے دیا، تو ان کو سخت پینالٹی وہاں پر پے کرنی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے اگر قوانین جو بنائے گئے ہیں اور ان کو جو وائلیٹ کر رہے ہیں، جیسے جو رولز بنائے گئے ہیں، جیسے نوائز پولیوشن کنٹرول رولز، یہ جو EPA کے انڈر میں آتا ہے اور اسے 2017 میں اس کو امینڈ کیا گیا ہے، اس کے تحت جو کچھ گائیڈ لائنز ہیں کہ آپ ہارن نہیں دے سکتے اور اتنی اسپیڈ پر نہیں چلایا جا سکتا، اور جو نوائزی جو انسٹرومنٹس ہیں وہ لے کر آپ پبلک پلیسز پر نہیں جا سکتے، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ جو کوئی بھی اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کے خلاف سخت اقدامات ہونے چاہیے، تب ہم صوتی آلودگی کو روک سکتے ہیں. اس کے بعد سبز پٹوں کی باقاعدہ ترتیب شور کو جذب کرنے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے، چونکہ آٹو موبائلز اور انڈسٹریز یہ دو سب سے بڑے سورسز ہیں اگر دیکھا جائے تو ان کے جہاں سے یہ پیدا ہو رہے ہیں ان کے اطراف میں اگر سبز بیلٹ ہو، یعنی درختوں کی ایک لمبی قطار ہو اور درختوں کا ایک پورا پٹا بنا دیا جائے، کیونکہ درخت جو ہیں وہ شور کو جذب کرتے ہیں، صرف آلودگی کو نہیں، یہ شور کو بھی جذب کرتے ہیں. جیسے نیم کا درخت ہو گیا، آم کا درخت ہو گیا، کرنج ہے، بامبو ہے، پیپل ہے، اشوک کے درخت، جو چوڑے پتے والے درخت ہیں وہ شور کو بھی ایبزارب کرتے ہیں ایئر پولیوشن کے ساتھ ساتھ. تو اس طریقے سے ہم ایک صنعتوں کے اطراف میں اگر گرین بیلٹ موجود ہو اور سڑکوں کے اطراف میں اگر گرین بیلٹ موجود ہو، تب بھی ہم صوتی آلودگی پر کنٹرول پا سکتے ہیں، بڑی حد تک اس کو کم کیا جا سکتا ہے.